माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक आह्वान किया कि अपनी धरती माँ को हम वृक्षों से श्रृंगारित करें, उसका सौंदर्य बढ़ाएं, उसको हरा भरा करें। इस आह्वान के साथ उन्होंने एक मुहिम चलाई जिसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम, और सभी लोगों ने यहीं के स्कूल में भी छोड़ा लग रहा है, वहीं से आया स्कूल। अरे वो लगाएगा वो सही है। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम देवाय जटायो शतमेन शरदो अग्निदेवाय यत्रान शौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा देव पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः। Few words about the organizations who have contributed to this event today. Respect Age International India. It is an Indian non-governmental organization that is dedicated to restore the dignity, value and active participation of our elders in the society. By initiating a tree plantation, environmental education and rural development, it has been empowering the youth and communities for decades. One of its initiatives is Children's Forest Program. Do any of you kids know about this program? Okay, so there will be an enlightenment episode for you today. One of its initiatives, the Children's Forest Program, has been running since 1991 across more than 30 countries. Their agenda being planting trees while planting values among the school children specifically. The joint efforts made by these two honorable organizations. और यहाँ उपस्थित इस सभागार में अपार्टमेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी, मेंबर और मेरे प्यारे बच्चों, धाम के अंदर ये कार्यक्रम इंटरजेनरेशनल के ऊपर जहां वरिष्ठजनों का और युवाओं का, बच्चों का एक संयुक्त प्रयास है जिससे हम भारत को एक नई दिशा दे सकें और जो हमारी इस समय की कमियां हैं उसको हम पूर्ण कर सकें। जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। बचपन को तो माँ बाप अपनी सब कुछ लुटाकर बच्चों को काबिल बना देते हैं। प्रकृति ने ऐसी एक शक्ति दी हुई है हर जीव जंतु को, मनुष्यों को, कि बच्चों के प्रति अपार प्यार रहता है। जंगली पशु भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनको खा नहीं जाते। तो माँ बाप अपना सब कुछ लौटाकर करके बच्चों को काबिल बना देते हैं, लेकिन जब वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए, नौकरी पे लग गई, जब उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो माता पिता उनको बोझ लगने लगते हैं और वो कहते हैं कि अब इनको घर की जरूरत नहीं है, घर में रहने की, इनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए। हमारी भारतीय संस्कृति ने शुरू से इस कमी को समझा होगा। लाखों वर्षों पूर्व तो उन्होंने संस्कृति में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव की भावना को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था और इसकी महत्ता को समझा था। श्रीमद् भागवत में भी प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया और जब देवकी और बलदेव जी जो कारागार में बंद थे, उनको उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए जब गए, तब वो लोग माता पिता उनके संकुचित हो गए। तो we can send some of the nursing students and they can go there and then they will become their
partner also, and this loneliness will be finished. Anyhow, so this is the one we want to propose, and I hope this message will come from here so that the intergenerational program will grow and will understand the values of our senior citizens, our parents, and we will never neglect them. That's right. Thank you so much for inviting me to such a wonderful occasion. And you know, particularly I want to know the school children. Very simple matter. Everybody knows that under this floor is soil. You know, all over our planet is made of soil, except sea. And you know, soil has been made with the help of earthworms. You know, I brought a memo. In conducting this intergenerational program, it's been almost 20 years. So first, you've already been introduced to the organization that Respect Age International was established in 1962. And the founder, Sri Hare Krishna Buddhaji, he had attended a conference in Japan in 1962. And the oldest citizen of Japan at that time was also presented a replica of Taj Mahal, which was published in the Tokyo newspaper, which is known as Tokyo Shimbun. Just for the records, in 1965, the oldest person in Iran, 199 years old, I don't know how true the record is, but then that is what was claimed. He was also felicitated by Respect Age International, and he was married to 26 women, and the youngest one was 112 years at that time. And here's yet another picture that Respect Age International has been continuing to honor the elders, the oldest citizen of Mauritius, who's 105 years old. And you all know this famous personality, Sonal Manchik. And the aim of felicitating the elders is to make use of the experience and to bring them in the spotlight. And here is the world president of Oishika International Japan, felicitated by Respect Age International. सब ऐसे हो गए, बिल्कुल 10,000 लोग आ गए, तो कामी लोग थे, क्रूर थे, दुष्ट थे, दुराचारी थे, जो आजकल हैं, है कि नहीं? राजनीति में भी ऐसे लोग हैं जो रणनीति तैयार करते हैं। भाई गीता को लेके कसमें खाई जाती, लेकिन गीता के बारे में निभाता कौन है, बोलता कौन है? तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक समय की मर्यादा है और समय से सारे काल अच्छे लगते हैं, क्योंकि चौपाई में जैसे कहा का वर्षा जब किसी सुखाने समय चुके पुण्य का पछताने, मतलब जब समय चला गया और फिर हमने कि आपका वो केस हो गया, अब केस क्या मतलब का, समय चला गया, अब शिक्षा के लिए जब बच्चे बड़े हो गए और वो कुछ कर ना पाए, पढ़ ना पाए, तो पैसा किस काम का, समय चला गया, चिकित्सा नहीं हो पाई, पता पैसे नहीं भर पाए, उसका इलाज नहीं हुआ, वो चला गया, फिर किस काम की चिकित्सा? तो शिक्षा हो, चिकित्सा हो या कानून हो, हम सच कहते हैं एकदम सही होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और समाज को इन पे पहला जोर देना चाहिए, क्योंकि सारी प्राइवेट जो शाखाएं संस्थाएं चल रही हैं वो सब आप जानते ही हैं, कहने का कोई विषय नहीं है। और आप देख चुके हैं चिकित्सा में सरकारी बन के काम करते हैं, बुलाते प्राइवेट में हैं, तो चिकित्सा से लोगों को भय हो गया कि नहीं? और शिक्षा से भी लोग कंगाल हो गए, बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, जो कम अपना ईमानदारी से भरण पोषण कर रहे, वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कहने का विषय ये है कि समय के रहते बोलना भी अच्छा लगता है, समय के रहते भोजन भी देना अच्छा लगता है। अब ये नहीं कि प्रवचन करें और रोटी ना दें, ये तो बहुत गलत बात है।
प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नाइस टू मीट यू, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये तो झूठी ड्रामा है, नाइस टू मीट यू, आपने मेरा समय खराब कर लिया। तो हम ऐसे टीचर्स को क्या, हम ऐसे स्टूडेंट को बहुत प्रणाम करते हैं जो अपने टीचर का नाम करते हैं। आज भी हमें बहुत बड़े पद पे जब मिलते हैं, वो अपने टीचर की फोटो बताते हैं तो हमें गर्व होता है। तो होता क्या है, जो बड़े मंच पे जैसे विराजमान है, ये बड़े हैं राम की तरह। ब्रिज संस्कृति के विषय में, ब्रिज के विषय में बहुत कुछ अवगत कराती है। हमारे गिरीश गुप्ता जी और उनके सभी साथीगण, सभी यहाँ उपस्थित जन, सभी संत जन, विद्वत जन, सभी का ये परम कर्तव्य है कि वास्तव में हम जो है भगवान के नाम रूप लीला धाम का स्मरण करते रहे। आजकल हो क्या रहा है कि बालकों के नाम भगवान के नाम पर नहीं रखे जाते। टिंकू है, पिंकू है, मुन्ना है, आदि आदि। यदि भगवान के नाम पर राम रखे जाएं तो निश्चय ही उसको एक विशेष प्रकार का गुण उसमें उत्पन्न हो जाएगा और भगवान की अविरल भक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए श्याम सुंदर, राधा रमण, राधा गोपाल, मदन मोहन आदि नाम बालकों के रखे जाने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। भगवान का नाम हो गया, रूप हो गया, भगवान के रूप के दर्शन कराएं। बहुत सारे कृष्ण के बारे में नहीं जानते, राम के बारे में नहीं जानते, उनको अवगत कराएं। हमारे पूर्वज पहले जो है घर सामने देखिएगा सब। अरे एक मिनट यार, बनना। He is also known as the Santa Claus uncle of our society. Winters में ही वो टोपी पहनते हैं ना तो थोड़ा Santa Claus लगता है। और इतनी बातें की मीठी है ना, तो बस प्रेजेंट देने की दे रहे हैं इनको। हाँ ठीक है, छोड़, हो गया। Yes, please, सामने। Ready, please, सामने देखिए। शर्मा जी I'm born almost, I think, since the early 60s with my father, Shri D.N. Sinha, and who helped together with my father in supporting OISCA in becoming a very great organization, and also assisting Watanabe-san, who came to India in 1966 to सरकार को इनवाइट किया कि इंडिया के इंडियन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करें। तो वाटनाबे साहब करीब 50 से 100 वर्ष कंप्लीट हो गया, मगर इनका लगाव इंडिया से, दिस लव फॉर इंडिया कंटिन्यूज। नाउ वी हैव कोऑपरेशन OISCA और नमामि गंगे, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसमें इसके अंतर्गत वाटनाबे साहब का मिशन है कि अपने in his life to complete this project to set up a training center in Sambhal and Varanasi. Vrindavan today that we are having a gap between the youth and the older ones. Who would like to answer this question? Why do we have such a gap? Please, you might have to come here. So the question was, why is the youth of the younger generation and the older generation are having a gap? So this new generation is having wide opinions and wide adverse opinions about the decisions that they're going to make. So what is the thing? The thing is that the younger generation is having different opinions. So on Increase of rice production, particularly rice production and export, I don't know. Export, I don't know. For production at least, OISCA volunteers from Japan contributed. And now, OISCA has been agreed with National Mission for Green Ganga, Government of India, to launch 2 projects. One at Sambal, not far from this place, and the other in Banaras.
3 subjects: organic farming, promotion of organic farming. Second, skill training of rural women. Third, tree planting, expansion of tree planting on both sides of the river Ganga. But practical information will be taken care by OISCA India, led by Mr. Alok Sinha. And this is a very big project for India also. I don't know how important that the people of India and the government of India decide the importance. We senior citizens. So I'm here with the support of OISCA India, Mr. Alok Sinha, and his friends, to do my best to implement the project agreed by government of India. गिरीश गुप्ता, co-founder रेस्पेक्ट इंटरनेशनल का हूँ। आज का ये कार्यक्रम इंटर जनरेशन ग्रुप, सीनियर सिटीजन और बच्चों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना और उनको बताना कि बुजुर्गों की सेवा भी कितनी आवश्यक है। OISCA इंटरनेशनल जापान से रेस्पेक्ट इंटरनेशनल का सन 1962 से संबंध है और मिस्टर बदन अबे जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको मैं काफ़ी प्रकार से जानता हूँ। 1962 में OISCA के निमंत्रण पर भी जो संस्था रेस्पेक्ट की संस्था के फाउंडर और हरिकिशन गुप्ता जी वो गए थे। वहाँ पर उन्होंने पूरी जापान को सम्मानित करके रेस्पेक्ट इंटरनेशनल की संस्था की स्थापना शुरुआत की। उसके बाद विदेशों में बहुत सी कंट्रीज को भी सम्मानित किया गया उनके देश में, और पूरे देश की ये प्रथम संस्था है जो कि बच्चों के प्रति सम्मान और रेस्पेक्ट इंटरनेशनल का प्रयास है कि OISCA इंटरनेशनल के साथ मिलकर बच्चों को जो ट्रेनिंग के लिए तो बुलाते ही है, नर्सिंग केयर के लिए भी यहाँ के बच्चे जाएँ वहाँ पर जो बुजुर्गों की सेवा करें, और ये भारत सरकार के साथ मिलकर एक एम्प्लॉयमेंट का भी साधन बनेगा। नर्सिंग के बच्चे नौकरी करें और इस प्रकार के ये लॉकडाउन में रोशिंदा रथ के सम्मान का भी कार्यक्रम लॉकडाउन में करते रहे। संत महात्माओं को किया जागृति का कार्यक्रम